जूनियर प्लेयर लोगों का हॉकी स्टिक टूट जाता था, तो अगर हैंडल टूटा है तो ब्लेड अच्छा होता था, और अगर ब्लेड टूटा है तो हैंडल अच्छा होता था। तो दोनों को जोड़कर उसको बनाना पड़ता था, और फिर बनाकर ये जूनियर प्लेयर लोगों को मिलता था खेलने। I was very dedicated towards my game. Hockey was my passion. Without hockey, I don't think I could have done anything else. My speed was such. I also was very happy when I read this article that people used to talk about the last few days like Tufan and all. More responsibility came on my shoulder. If media is giving you this kind of a name, if you don't perform, media आपको नीचे भी लेकर आएगा। तूफान के अलावा और भी कुछ नाम दे सकते हैं। That time I had this inferiority complex also. जब fast English बोलते हैं तो आपको समझ नहीं आता है, but that helped me also to learn from them and talk. मैं एक कह सकता हूँ, this hockey has given me name, and this hockey has given me everything. Never ever have an inferiority complex. You are good, that's why you are there, and you will definitely achieve your goals. Was my second match with Pakistan in Holland. Pakistan coach, I think that he come to know that this new boy is very fast and he can do anything in the league. So I could hear from the bench, अरे वो काले को पकड़ो, अरे वो बहुत भाग रहा है, उसको पकड़ो. I still remember it was like yesterday happened. As long as you are giving your 100% in the field, तो आपको वो सब नाम या नेगेटिविज्म आपको देखने को नहीं मिलता है। In your life, good things and bad things happens, but never ever take it to your heart. You need to work hard toward your skills. Then only you can develop. Muhammad Shahid used to hit. After that, nobody could master that skill. Then in 1990 onward, I started and I got famous. I used to practice almost 40 minutes, 1 hour. खेलों को महत्व देना चाहिए हिंदुस्तान में, हर खिलाड़ियों को इज्जत देना चाहिए हिंदुस्तान में। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, every athlete should have this three things. I was not in India when Rajiv Gandhi Khel Ratna award announced. I was playing in Germany. I was the luckiest person. I was the happiest to see that my mother was going to Delhi and receiving the Rajiv Gandhi Khel Ratna award. I am the only player in this country, played for 15 years on AstroTurf and received whatever I dream. If you want to achieve all that, you need to dream also. Without dream or without hard work, you will not reach there where you want to. Till the last breath or till the last minute of the whistle, I used to fight. Anything can happen. So don't give up, because till last minute or last 10 seconds also table can change. ITN विश्वविद्यालय ग्वालियर पद्मश्री भगवान पिल्लई जी का 10वें प्री एकेडमिक कॉन्क्लेव में हार्दिक स्वागत करता है। जिसने भी ये वीडियो बनाया है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। Honorable Chairman of ITM University, Gwalior, Honorable Chancellor Ma'am, Honorable Pro-Chancellor, today's Chief Guest, इस
ऑडिटोरियम तो इतना सीरियस बना दिए हैं आप लोगों ने कि स्टूडेंट ऐसे रहते नहीं है, मुझे भी मालूम है। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग इतना ध्यान से हर वो चीज़ को सुन रहे हैं, थोड़ा स्पोर्टिंग बना लेते हैं। And I'm honored today that ITM University honoring the dignitaries जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है अपने देश के लिए। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि मेरा करियर जो है इसी धरती से हुआ। 1989 में नेशनल चैंपियनशिप था ग्वालियर में, और रेलवे स्टेडियम में हम लोगों ने फाइनल जीते थे। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग मुंबई, एंड आई थिंक आफ्टर समवेयर अराउंड 18-19 ईयर्स के बाद में वो चैंपियनशिप हमने जीते थे। और वहाँ से मैं इंडिया कैंप में मेरा प्रवेश हुआ। और ग्वालियर ने बहुत कुछ दिया है मुझे। आज यहाँ पर खड़ा भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर के वो रेलवे स्टेडियम में उधर से उतारकर पूरी दुनिया में मुझे खेलने का अवसर दिया। मैच को देखने के लिए लेजेंडरी क्रिकेटर नवाब साहब भी आए थे, नवाब पटौड़ी साहब। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी कुछ सुन लिया होगा वीडियो के जरिए। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा कुछ। इस हॉल में बहुत सारे लोग हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं। Never ever have an inferiority complex in कुछ you. मीठी है मैं ये सब बोतल के सामने इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब चीज मैंने ना अनुभव किया है। When I started playing for the country, I used to only speak 3 languages. That is my mother tongue Tamil, my born and brought up Maharashtra state Marathi and Hindi. इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता था। जब भी गोरे मेरे सामने से आते हैं तो मैं नीचे मुंडी करके निकल जाता था, क्योंकि अगर मैं छाती या सर उठाकर उनके सामने खड़ा होता तो इंग्लिश में कुछ पूछते तो उसका जवाब नहीं होता था मेरे पास। और आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश अलग है, इंग्लैंड की इंग्लिश अलग है, यूएस की इंग्लिश अलग है, और ये सब देशों में मैं खेल चुका हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों होना नहीं चाहिए। आप अंदर से टूट जाते हो और फिर उसको मैंने ना इंग्लिश सीखने की भी कोशिश की। एक बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तो रिसेप्शन में बैठे थे होटल में, और सुबह सुबह का टाइम था तो हम लोग बॉम्बे से चलते थे या दिल्ली से चलते थे, तो वो इधर जाता था पहले, वहाँ पर एक 8-10 घंटा ट्रांजिट में बैठना पड़ता था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता था। तो ऑलमोस्ट 24-30 आवर्स लग जाता था उस जमाने में। और जब रिसेप्शन में बैठे हैं तो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आता है तो पूछता है यू केम टू डाई। तो समझ में नहीं आया मुझे, यार हम मरने को तो नहीं आए। तो ये सब चीज को है ना हैंडल करने के लिए मुझे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़ी। और मैं ना मेरे खिलाड़ियों का शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया भी मुझे। स्पोर्ट्स इज अ पैकेज दैट यू लर्न एवरी डे। आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप लोगों के साथ में ना तो कुछ यादें शेयर कर रहा हूँ। और मैं ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर चेयरमैन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे मौका दिया गया कि इस ऑनर को एक्सेप्ट करें। और चांसलर मैडम का भी मैं
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तीन चीज होना बहुत जरूरी है, दैट इज पैशन फॉर योर नेशन। आप अपने देश को बहुत प्यार कीजिए। यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन लाइफ, you need to have dedication and you need to have hard work. ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरा भी उम्र निकल गया है। I am also 58 now. Tomorrow you people are going to take this country ahead. आप लोग इस देश को ऊपर लेकर जाओगे। आप लोग इस देश को, पिछले कुछ सालों से हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग भी अगर मेहनत करोगे तो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने कोचेस का, अपने टीचर्स का ना। You should listen to your teachers. Why I am telling, when I was studying, there were some teachers, Dhanraj, don't come to school because you are spoiling other students also. लेकिन जब मैं उस स्कूल में एज ए टीचर जाता हूँ तो वही टीचर लोग आज रोते हैं कि यार he has done something smart, he has done something good for तो इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज यहाँ पर खड़ा हूँ, आप लोगों के बीच कुछ बातें रख रहा हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत सारे लोग है ना वेट करते होंगे कि यार हमारा सर्टिफिकेट कोर्स एक कॉन्वोकेशन है, आप लोग भाषण करने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए, हम लोगों को कब मिलेगा हमारा सर्टिफिकेट या कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट थिंग। तो once again, Madam, sir, thank you so much for giving me this opportunity to be here today. All the graduate students, कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप यहाँ पर खड़े होके आप अपने माँ बाप का नाम, अपने टीचर्स का नाम, अपने स्टूडेंट का नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करोगे और चेयरमैन साहब भी खुश होंगे, चांसलर मैम भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वहां के सेंट स्टीफेंस स्कूल से पूरी की। हंसराज कॉलेज से बीएसएससी पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई शुरू की। कानून की पढ़ाई के दौरान ही गोपाल सुब्रमण्यम को उनके प्रोफेसरों ने एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में पहचाना। कॉर्पोरेट मामलों में रुचि रखने वाले गोपाल सुब्रमण्यम अपने दोस्त शार्दुल श्रॉफ के साथ मिलकर विभिन्न मामलों में बहस करते थे। बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की ओर से उनके प्रमुख मामलों में विभिन्न अदालतों में उपस्थित होकर बहस की। Whether you look at it as crimes against women, whether you look at it even as corruption, whether you look at it as this extraordinary insecurity which leads to very highly politically manipulative behavior in our society, we are not understanding that all these are three classic cases of mental illness. They are really nothing but very aggravated forms of mental illness. इसी दौरान गोपाल सुब्रमण्यम ने भारत के शीर्ष वकीलों में से एक और केंद्र सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ काम करना शुरू किया। सोली सोराबजी का मार्गदर्शन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास करने में सहायक सिद्ध हुआ। Well, the truth is that I was not interested in becoming a lawyer. I fancied that I would be a poet. I fancied that I would be a novelist. My favorite was T.S. Eliot. When I started going to the trial court as a student, it was 78 to 78, 79. जब गोपाल सुब्रमण्यम ने विभिन्न मामलों में अपनी उत्कृष्ट बहस क्षमताओं को साबित किया, तो केंद्र सरकार ने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जांच करने वाले जस्टिस वर्मा आयोग के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया। उन्हें मिले हर अवसर पर
गोपाल सुब्रमण्यम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बहुत कम उम्र में वरिष्ठ वकील के रूप में मान्यता दी। वरिष्ठ वकील बनने के तुरंत बाद उन्होंने मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में सीबीआई वकील के रूप में कार्य किया। वह 2012 में मामले की सभी जांच पूरी होने तक उस पद पर बने रहे। उसी समय असम में मानसिक रूप से बीमार होने का आरोप लगाकर कई लोगों को अस्पतालों में बंद करके यातना दिए जाने की शिकायतें आईं। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए गोपाल सुब्रमण्यम को ही चुना। इसी तरह उन्हें 2001 संसद हमले के मामले में सरकारी विशेष वकील के रूप में भी नियुक्त किया गया था। कई वर्षों तक गोपाल सुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के पसंदीदा बने रहे। इसका कारण था संवैधानिक समझ और उसकी व्याख्या पर उनकी पकड़। इसलिए विभिन्न कानूनी मामलों में उनकी विशिष्टता ने सर्वोच्च न्यायालय की मदद की। Means, I think I would put it, Rocky, that life is all about inspiration. I would give advice to any young lawyer who wants to join the profession. Why join the profession? Anything which he wants to do. That open your heart, open your eyes, open your ears, and look for that extraordinary thing. And you will find that it is so rewarding. All India Consumer Price Index, I love you. The result would be the rate which we have asked. ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी का 10वें एकेडमिक कॉन्क्लेव में हार्दिक स्वागत करता है। The Vice Chancellor, Dr. Daulat Singh, the founder of this institution, Mr. Ramashankar Singh, who has possibly materialized the dreams of his mentor, Ram Manohar Lohia. The most extraordinary people on the dais, Srimati Anupam Sood-ji, Srimati Arundhati Nag-ji, Dhanraj Pillai-ji. As a lawyer, we are known to be loquacious. We're meant to be articulate. We're meant to be elegant and eloquent. Today I felt that I ceased to be a lawyer for a few hours. I was human. And I was listening to every word of what Srimati Anupam Sood-ji, Srimati Arundhati Nag-ji and Captain Dhanraj Pillai-ji said today. I resonated with so many of their thoughts, ideas, views. I have to share something with you in the forefront. I used to go to Lalit Kala Academy and see the printed art of Anupam Sood-ji. I never thought I would have a day and a momentous occasion when I would be sitting just next to her. I have watched both theatre and films, and I have seen Arundhati ji act. I have seen Shankar Nag ji act.
I know that those who come from the schools of drama carry that authentic message of conveying something from the theatre of life, from the profundity of their inner experience. When I sat next to Arundhati Ji, I was reminded of another great Kannada actor who also acted in Marathi plays and in Kannada plays, Girish Karnad. And I used to view all these three along with Shabana as Azmi. You spoke about Kaifi Azmi, so I remember